आणि शनिवारी जर त्यांनी दिली तर परमिशन शनिवारी म्हणजे उद्या परवा दिवशी विनायक Good afternoon, friends. We will start today's lecture because it is now 1. Now, last time in last lecture, what we have seen, please check it. First thing we have seen what is meant by force, what is meant by resultant, what is meant by coplanar. These all things we have already learned. Now, today we are going to solve one problem. So I will give one problem to you. Before that, I will explain to you how it is going to solve this problem. जो भी मैंने प्रॉब्लम देने वाला हूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने का वो मैं बताऊंगा आपको. सो फर्स्ट थिंग वी हैव Shubhda Deshmukh, is it audible? Yes, sir. Okay. Now, what is meant by force? Already I have mentioned to you. Force is a it is not a physical quantity. It is having magnitude as well as a direction. So I will consider this force is having a magnitude 200 Newton and direction is in this way. The force is having a magnitude and direction. So I have considered that this is a 200 Newton force and direction will be considered here 30 degree to the horizontal. 30 degree to the horizontal. For 30 degree to the horizontal. It is a 200 Newton force is exerted on some body. Only one force we will consider and afterwards we will consider number of forces. So first we will consider the only one force. It is a 200 Newton. Okay. (200 Newton). Again I am repeating this.
The force is exerted on some body. Suppose that on this body there is a force is exerted. Force is having a three phenomena. First is the magnitude, second one is the direction, and third one is the point of application. So I have applied the force here, and due to application of force, two phenomena is going to exist. This is a pulling and pushing phenomena. You can either pull or either push. Either pull or push. फोर्स से आप दो बातें कर सकते हैं, उसको पुल कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं. एंड फोर्स के कारण दो बातें हो सकती है, दो थिंग्स हो सकते हैं. वो फर्स्ट थिंग इज नथिंग बट बॉडी इज गोइंग अंडरगो अ डिफॉर्मेशन. बॉडी अंडरगोज अ डिफॉर्मेशन एंड सेकंड विल बी डिफॉर्मेशन, मतलब चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज डिफॉर्मेशन. आप फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें शायद चेंजेस क्या हो जाएंगे कि उस बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होने की कोशिश करेगा. So this is a internal force, I can say here. Deformation is nothing but internal force. If you can see here, if I apply the force on the chalk, there is an internal deformation is going to occur. But my force is not sufficient to make maximum deformation in the chalk. So, but it is an internal somewhat deformation is going to exert here. So this is a deformation. And second thing is very important. It is a motion. Due to the force, there is a motion is going to occur. So our body undergoes a motion. So remember one thing, always you are required to remember one thing, कि फोर्स के बारे में पूछा जाए तो इतने ही वर्ड्स सफिशिएंट है. ये 3 वर्ड्स, उसके बाद एक्शन क्या होने वाली है और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है. सॉरी, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, डिफॉर्मेशन और अंडर मोशन. विच टाइप ऑफ फोर्स वी कैन अप्लाई, टाइप ऑफ फोर्सेस, एंड थर्ड वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन फोर्सेस. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन फोर्सेस. कैरेक्टरिस्टिक मतलब मैं कभी कभी बोलते हैं तुम आपका स्वभाव ऐसा है या ऐसा है. तो सिमिलरली फोर्स का कैरेक्टर क्या है, इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड, इट इज हैविंग डायरेक्शन, इट इज हैविंग अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. उसके दो टाइप के फोर्स वी कैन अप्लाई. फर्स्ट इज द पुलिंग फेनोमेनॉन एंड सेकंड वन इज द पुशिंग. मींस हियर आई एम पुलिंग, इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो इसको मैं पुल कर रहा हूं. Or if suppose that if I apply the force in this way, suppose this is the body, and if I apply the force towards the body, then it is a pushing phenomenon. Clear? So pulling and two types of forces we can apply, and due to these forces, either deformation or motion is going to occur. Okay, either deformation or motion of the body is going to occur. Clear? So now we are going to solve some problems related to the first chapter. So we will take a simple example. मैंने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया है कि इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड इट इज आल्सो हैविंग अ डायरेक्शन. इट इज हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड इट इज आल्सो हैविंग अ डायरेक्शन. डायरेक्शन आई हैव शोन बाय एरो. एंड वन थिंग ऑलरेडी आई हैव मेंशन दैट कि इफ a force is a vector quantity, the laws which are related to the vector quantity, these laws can be applicable to the force. Am I right? Let it be, we will not consider that. We will not go into the details of the vector. We will solve this problem by a simple method. Now there is an, if suppose that there is an n number of forces are there, I will give one condition. If there is an n number of forces is acting on the body, suppose that one body I have considered, and on that body there is a n number of forces. I have considered only 3 here. So this is a 20 Newton, this is a 10 Newton, and this is 100 Newton. Now, what will be the resultant effect of this? To find this resultant effect, it is quite complicated. आप ऐसा देख के तो बता नहीं सकते कि ये बॉडी इधर जा रही है उधर जा रही है, इतने रिजल्टेंट से जा रही है, उतने फोर्स से वो बॉडी जा रही है, ये आपने श्योरली नहीं बता सकते. Am I right or wrong? We can't give a surety that in which direction the body is going to move. And with how much magnitude it is going to move, we can't give the surety. So some stringent rules we have required to apply, or we have to solve this problem by some method. And what is the method? So this is the method. In this method, what we will do, मैं क्या करूंगा, 20 Newton and 100 Newtons are not either horizontal or vertical. ये 100 Newton vertical भी नहीं है and horizontal भी नहीं है, लेकिन ये 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है. तो मैं क्या करूंगा, ये 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल पे कितना कंट्रीब्यूशन है एंड 100 न्यूटन का
हॉरिजॉन्टल पे कितना कंट्रीब्यूशन है निकालूंगा और सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करूंगा। व्हाट आई सेड, आई विल रिपीट दिस। मैं क्या करूंगा, 20 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल पे कितना कंट्रीब्यूशन है एंड 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल पे कितना कंट्रीब्यूशन है वो निकालूंगा। सो 20 का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन सपोज दैट 5 है, 5 न्यूटन। 100 न्यूटन का कंट्रीब्यूशन 20 न्यूटन है। Am I right? So I will do the algebraic summation, 20 Newton, 5 Newton and 10 Newton. But there is a one problem. It is having, force is having a direction. So we have required to use some nomenclature. जो भी फोर्सेस राइट की तरफ जा रहे हैं उसे मैं पॉजिटिव कंसिडर करूंगा। और आपको शायद क्वाड्रेंट सिस्टम की स्ट्रक्चर पता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। जो फोर्सेस अपवर्ड दिशा से जा रहे हैं पॉजिटिव, डाउनवर्ड दिशा से जा रहे हैं वो नेगेटिव। दो फोर्सेस व्हिच आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट इट इज अ पॉजिटिव, दोज आर मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट दे आर नेगेटिव। सो दिस nomenclature we will do, and we will do the addition of this all these horizontal forces, and similarly I will do this summation of all the vertical forces. So what I wanted to say from this example, मेरे को क्या करना है कि 20 न्यूटन 100 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन निकालना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल। मेरे पास 200 न्यूटन का एक फोर्स है, उसका मेरे को हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है। अब 200 न्यूटन इज अ रिजल्टेंट, 200 न्यूटन इज अ रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का मतलब क्या बता रहा हूं मैं कि इसका मेरे को 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो मेरे को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, डॉटेड। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा ये, क्योंकि ये समझ में आ गया तो पहले 3 चैप्टर आराम से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते, मींस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन निकाली, एक वर्टिकल लाइन डॉटेड निकाली और एक ट्रायंगल बना दिया। मैंने एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन निकाली, एक वर्टिकल डॉटेड लाइन निकाली और एक ट्रायंगल बना दिया। Am I right? Now the laws which are trigonometric rules जो भी है वो मैं इस ट्रायंगल को अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन एरो कैसे दिखाने के, क्योंकि इट इज अ डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन है। तो मेरा एक रूल है, सिंपल रूल मैं बताता हूँ। आप इधर से इधर चले, एक्चुअली द फोर्स इज एक्सर्टेड हियर, रिमेंबर दैट। ये आरो आप कितना भी दिखा लो, फोर्स इधर नहीं एक्सर्ट हुआ है, फोर्स इधर ही एक्सर्ट हुआ है। क्लियर? फोर्स इज एक्सर्टेड हियर, दिस इज एरो इज जस्ट इंडिकेशन। अभी मैं क्या करूंगा कि माय सिंपल रूल इज दैट, मेरे को एक कंडीशन है कि आप आइदर हॉरिजॉन्टल जाओ और वर्टिकल जाओ। मैं एक सिंपल बताता हूं कि ये एरो की तरफ आपको जाना है, इस एरो को पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। तो आपका एरो ऐसा होना चाहिए एंड लास्ट एरो ऐसा होना चाहिए। दिस टू एरो शुड रिक्वायर टू मीट। वर्टिकल एंड 200 न्यूटन का 200 न्यूटन का एरो जो है वो आपका कनेक्ट होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, रिमेंबर दैट। मैंने क्या किया देख लीजिए, ये 200 न्यूटन का फोर्स है, उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की डॉटेड, एक वर्टिकल लाइन डॉटेड ड्रॉ की, एंड एरो जो है वो एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरो दिखाते वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन का एरो ये फ्लो होना चाहिए, फ्लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नो? फ्लो होना चाहिए। और आप एरो को नहीं समझ पा रहे तो मैं दूसरा मेथड भी बताता हूं आपको। मेरे को बताओ ये ट्रायंगल तो बन गया कि नहीं? ट्रायंगल बन गया। सो नाउ आई विल से दिस इज अ एक्स एंड दिस इज अ वाई। आई विल से दिस इज अ एक्स एंड दिस इज अ वाई। नाउ ये इफ आई वांट टू फाइंड आउट ये एक्स, व्हाट इज द फॉर्मूला? cos 30 is equal to x divided by 200. Cos 30 is equal to x divided by 200. Then can I find out x is equal to 200 cos 30? Or can I find out x value? You do the calculation, you are going to get the answer here. So x is equal to 200 cos 30. Similarly, can I find out y? So sin 30 is equal to y divided by 200. So what will be the y? Y is equal to 200 sin 30. Now can I get this contribution? Y को वैल्यू मेरे को मिल गई, x की वैल्यू मेरे को मिल गई।
Am I right or wrong? So find out this value. 200 cos 30 कितना आता है देख लीजिएगा. 100. 100. And 200 sin 30. 100. 100. वो भी 100 ही आया था क्या? 100. नहीं सर, f cos थीटा 100 रूट 3 आता है. F cos theta. 200 cos 30 100. 100 रूट 3 इक्वल टू f cos थीटा. हेलो सर. हाँ हेलो. 103 येते. सर 200 cos 30 173.20 होता. मला x ची व्हॅल्यू सांगा. 173 आहे सर. 173.2 सर. 173.2. करेक्ट. And y? 100. Y is 100 सर बरोबर आहे. Okay. Now y is 100 and x is equal to 173.2. Clear? Now अभी मेरे को पता चल गया कि 200 में से न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है हॉरिजॉन्टल की तरफ 173 है, 173.2 है. एंड sin 30 का y का कंट्रीब्यूशन 200 का y की तरफ का कंट्रीब्यूशन 100 है. Am I right? Now मेरे को अभी क्या करना है, इसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. इसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. मैंने मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, लेकिन डायरेक्शन के बारे में मेरे पास दो रूल है कि डायरेक्शन दिखाते वक्त आप क्या करो कि ये एरो दिखाते वक्त फ्लो में दिखाओ, ये और ये कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए. या नहीं तो आप एक ऐसा भी काम कर सकते हैं, सपोज दैट इफ दिस फोर्स इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आप क्या करो एक हॉरिजॉन्टल लाइन इधर डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, विच शुड बी आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड एक वर्टिकल लाइन इट शुड बी, ये बीच में आना चाहिए. 200 न्यूटन फोर्स बीच में आना चाहिए. 200 न्यूटन फोर्स बीच में आना चाहिए. So 200 Newton, horizontal component will be 173.2 and vertical component will be the 100. Clear हो? सबको समझ में आ गया? ये 173 कैसे आ गया? ड्यू टू अ ट्रायंगल. एंड डायरेक्शन कैसे दिखाने का? तो अभी ये ट्रायंगल, ये देख लीजिए, ये एरो ये सेम ही है, ये भी सेम ही है, डायरेक्शन सेम है इस दोनों को. ये वर्टिकल का भी देख लीजिए एंड हॉरिजॉन्टल का भी देख लीजिए. द एरोज आर सेम. इट डिपेंड्स ऑन यू नाउ कि आप इस तरह से इसको रिजॉल्व करेंगे या इस तरीके से उसको दिखाएंगे, ये आप पे डिपेंड है. समझ में आ गया? मैं और एक बार बताता हूँ. 200 का कंट्रीब्यूशन मैंने फाइंड आउट कर लिया, 173 एंड 100. फोर्स इज हैविंग मैग्नीट्यूड मैंने फाइंड आउट कर लिया. अभी मेरे को डायरेक्शन दिखाना है, हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन दिखाना है. तो डायरेक्शन दिखाते वक्त इशू मेरा क्या हो रहा है कि डायरेक्शन कैसे दिखाने का. तो मैंने एक ट्रायंगल तो ऑलरेडी बताया है कि फ्लो में होना चाहिए, ये ट्रायंगल फ्लो में होना चाहिए और एंड जो है वो एंड पाथ में मिलने चाहिए और ये फ्लो में होना चाहिए. नहीं तो आपको ये नहीं दिखा सकते तो आप क्या करो कि आप एक डॉटेड लाइन निकालो, ये बीच में लेने का, हॉरिजॉन्टल लाइन उसके नीचे, वर्टिकल लाइन इसके ऊपर. फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. सिमिलरली सपोज दैट फोर्स इज इन दिस वे, आपका 200 न्यूटन का फोर्स इस दिशा से है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल 30 ही है वैसा ही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन ड्रॉ करने का, एरो इस तरीके से आएगा एंड इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा. सो ये वर्टिकल आएगा. Now in this case 173.2 is a positive and minus 100. Minus क्यों? The arrows is moving in a downward direction. The force is moving in a downward direction, so it is a negative sign. Minus 100 and it is a 173.2. 200 न्यूटन का स्प्लिटिंग किया मैंने. Are you understanding or not? Now suppose that if I will consider third case भी मैं बताता हूँ आपको कैसे रिजॉल्व करना. थर्ड केस में आपने क्या किया, फोर्स इस दिशा से है, 200 न्यूटन फोर्स इस दिशा से है, तो ये एंगल भी 30 है ऐसा मैं कंसिडर करता हूं. नाउ इन दिस केस यू कैन चेक इट. हॉरिजॉन्टल लाइन पहले ड्रॉ करो डॉटेड एंड देन ड्रॉ वर्टिकल लाइन. Now this will be the 1 minus 173.2 and this will be the positive 100.
Are you understanding? Now similarly I will consider the fourth case also. So here also same case, 30-degree angle, 200 Newton force. So same case, पहले मैं horizontal line ड्रॉ करूंगा, एक इधर ही vertical line ड्रॉ करूंगा. So it will be the minus 173.2 and this will be the minus 100. Means 200 Newton force कौन से quadrant पे है वो बहुत important है. Because again I am repeating this, मेरे को डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है इधर. डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, बिकॉज फोर्स को खाली मैग्नीट्यूड नहीं है, उसको डायरेक्शन भी है. तो जब डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन का सिंबल हमको पता होना चाहिए. तो सिंबल हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया है कि प्लस माइनस किसको बोलने का ये मेरे को पता है. You can see this is a plus, this is a plus. If it is moving in this direction plus, if it is moving upward it is a positive, if it is moving in this direction negative, if it is moving in this direction negative. Means जो भी inclined forces है इस चैप्टर में या नेक्स्ट 2 चैप्टर में जो भी inclined forces है उसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा. इसको हम रिजॉल्व बोलते हैं. 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करने को ही हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. एंड इफ यू अंडरस्टूड द रिजोल्यूशन, I have the guarantee you can easily solve problems related to the chapter 1, chapter 2 and chapter 3, because that much simplicity is there in this chapter. But many students don't understand how to resolve the forces, and I have explained this is the simplest method. Suppose that if any force is in first quadrant, it should be in this way. If it is in second quadrant, it should be in this way. If it is in third quadrant, it should be in this way, and if it is in fourth quadrant, it should be in this way. और ये सिंपलेस्ट मेथड, जो भी फोर्स दिया है उसको बीच में लेके उसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. जो भी फोर्सेस है उसको बीच में लेके आपको उसका उसके डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी. लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है. सपोज दैट दिस फोर्स इज इन दिस वे, आई विल ड्रॉ हियर दिस फोर्स हियर. ये फोर्स इधर है तो आपको डायरेक्शन किधर दिखानी पड़ेगी? इसको तो बीच में लेना ही है. तो यू कैन शो इन दिस वे, नॉट हियर. इसको हमको एरो शुड बी मूविंग आउटवर्ड, ये एरो सभी मूव होने चाहिए. आप इधर ऐसा नहीं दिखा सकते, इधर नहीं दिखा सकते. एरो किधर है? एरो शुड बी इन मूविंग इन आउटवर्ड डायरेक्शन और दे आर नियरर टू ईच अदर. आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. सी हियर, ये एरो पहले देख लीजिए, ये एरो इस दिशा से था तो ये एरो शुड बी मूविंग आउटवर्ड डायरेक्शन. अभी ये एरो देख लीजिएगा, ये एरो पास में आ रहा है. ये एरो में इधर भी दिखाया तो ये एरो पास में आ रहा है और ये भाग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ड्यूरिंग इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. फोर्स के बारे में आपको रिजॉल्व करने के बारे में ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको हम रिजोल्यूशन बोलते हैं. एक बार ये रिजोल्यूशन आपको समझ में आ गया सो आई हैव द गारंटी. एंड रिमेंबर दैट ये मैग्नीट्यूड 173 क्यों आया है? बिकॉज दिस फोर्स इज ऑलरेडी हैव अ ट्रायंगल. हमने उसका ट्रायंगल बनाया है. देख लीजिए, ये ट्रायंगल बना के हमने फाइंड आउट किया है. दिस इज द जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट. एक्चुअली ये दिखा नहीं सकते क्योंकि हर जगह ट्रायंगल ड्रॉ करना मेरे को अच्छा नहीं लगता. हर जगह हर एक फोर्स का ट्रायंगल निकालना मेरे को अच्छा नहीं लगता. सो व्हाट आई विल डू हियर, ये ट्रायंगल निकालने की जगह मैंने क्या किया है, खाली देख लीजिए, ये इधर है, ये इधर है, तो दिखने में अच्छा दिखता है इसलिए मैंने ये किया. इफ यू वांट टू ड्रॉ द ट्रायंगल, नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ओके, नाउ दोज हैव नॉट अंडरस्टूड प्लीज राइट इट डाउन दिस. ये चारों डायग्राम आप निकाल लीजिएगा. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इफ यू नॉट अंडरस्टूड द डायग्राम देन डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड द फर्दर पार्ट आल्सो. So please write it down this, draw these diagrams. I will give another 1 or 2 minutes to you. So you are required to draw these diagrams in your notebook.
Okay, and now those have completed, please write it down below. थोड़ा सा ही पार्ट लिख के ले लेंगे हम. Now force is having a magnitude and direction. Force is having a magnitude and direction. Force is having magnitude and direction. Therefore, force is having a magnitude and direction. Therefore, we should require to consider a sign convention. We should require to consider sign convention. We should require to consider a sign convention and write it down. Draw this symbol. The forces are moving upward. It is positive. This is a positive. This is negative. This is a negative. We should require to follow this sign convention. We should require to follow following sign convention. Following sign convention. Okay. Now we'll take a simple example today. Only one force we have considered. So detailed theory related part is not difficult after understanding this question, understanding how to solve this problem. Now I'll take a simple example. Three forces are acting in this direction. Three forces I will consider. One force acts in this direction. So this is 100 Newton. This is 200 Newton. And this is 150 Newton, making angle with a horizontal. With horizontal 20 degree. Now three forces are acting on this one body. On this point, three forces are acting. Okay. Now can anybody tell that after applying these many three forces or these many forces, in which direction the body is going to move? ये तीनों फोर्स अप्लाई करने के बाद आपको कितना पता है क्या, किसी को पता है क्या कि ये कौन सी दिशा से कितने एंगल से मूव होने वाली है और कितने मैग्नीट्यूड से मूव होने वाली है? It is not possible to anyone, even to me also it is not possible. So that we have required to do the resolution. We have required to do the resolution. So resolution कैसे करेंगे हम? 100 Newton completely horizontal है, so it is a positive. इधर cos sign नहीं आएगा क्योंकि it is a completely horizontal. Now 200 Newton is a completely vertical, so it is a negative. 200 Newton is completely moving in a downward direction, so that it is a negative. But 150 Newton is making an angle with horizontal 20 degree. 150 Newton is making an angle of 20 degree with a horizontal. Now I have to resolve 150 Newton. Now I have to resolve 150 Newton. So how it is? So 150 Newton के बारे में मैं क्या करूंगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 150 न्यूटन के पास जिधर भी एरो है उधर एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो एंड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो डॉटेड. Now this will be minus 150 cos 20 degree and this will be प्लस होगा 150 sin 20. माइनस क्यों आएगा? The direction matter here. Direction is moving to the left, it is a negative. It is moving upward, so it is a positive. Now why it is cos and why it is a sin? You can check it. I will draw a separate triangle here. I will draw a separate triangle here. So it is 150, it is x and it is y. So again I will write here, and this is a 20 degree. So how it is? Cos 20 is equal to x divided by 150. So x is equal to 150 cos 20. And similarly, sin 20 is equal to y divided by 150. It is y is equal to
150 sin 20. So x component is a cos and y component is always we are going to consider a sin. Remember that if the angle is made with a horizontal line, if angle 20-degree angle is made with a horizontal line, then horizontal component is always cos. And if angle made with a horizontal, then vertical component is a sin. So without using a triangle or without drawing the triangle, I can write directly 150 cos 20 and 150 sin 20 because I knew it. The horizontal component is a cos and a vertical component is sin. This thing I know it. So you write it down somewhere this statement. ये statement आप शायद किधर तो लिख लीजिएगा कि बहुत important है ये statement. If the force has made, if force has made angle with a horizontal line, if force has made angle with a horizontal line, then horizontal component of force is, then horizontal component of force is cos. Horizontal component of force is a cos and vertical component of force is a sin. Vertical component of force is a sin. Now, any issue related to this? Up till now, any problem? Resolution के लिए आपको कोई problem? I will ask a specific question to a specific person. Sri Mani, roll number 55. Roll number 55, Sri Mani. रोहन चौगुले, रोल नंबर 21. येस सर. हा, समजायला काही इश्यू यामध्ये? हा समजलं सर. समजलं? ओके. नाही. हा. Okay. Now, after that, what is my main thing is that till date we have learned how to resolve. अभी तक हमने यही सुनना है कि how to resolve. लेकिन इसके आगे क्या करना है? मैंने तो ऑलरेडी बताया है कि जो भी फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है उसका समेशन करो, जो भी फोर्सेस वर्टिकल है उसका समेशन करो. Why to do that summation I will explain later. So what I will do here, see here, I will do a summation here. जो भी जितने भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फोर्सेस है उसका मैं समेशन करूंगा. सो अल्जेब्रिक आई विल से हियर. अल्जेब्रिक का मीनिंग पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ले लीजिए, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव ले लीजिए. यू नो दिस अल्जेब्रिक समेशन. तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ले लूंगा. जितने भी हॉरिजॉन्टल दिशा से, हॉरिजॉन्टल से जितने भी फोर्सेस है, दैट फोर्सेस आई हैव रिक्वायर्ड टू कंसीडर, नॉट वर्टिकल. जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उतने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मेरे को कंसीडर करना. सो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज 100 न्यूटन. सो इट इज अ पॉजिटिव, आई हैव टेकन एज इट इज. नाउ सेकंड फोर्स आई विल कंसीडर हियर. मैंने लिखा दिखाया इधर है लेकिन एक्चुअली इट इज कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल बिकॉज उसका हमने कंपोनेंट लिया है. देख लीजिए ये फोर्स इधर एक्ट नहीं हो रहा है, फोर्स इधर एक्ट हो रहा है. सो इफ आई डू द रिजोल्यूशन हियर, ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इधर ड्रॉ किया है. Again I am repeating this. Actually this force is going to exert here. ये भी फोर्स इधर ही आएगा लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, इधर बहुत सारे डायग्राम्स आएंगे, तो इसलिए मैंने क्या किया कि इधर लिखा है. लेकिन दिस इज अ कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल. सो इट इज -150 cos 20. -150 cos 20. And 200 Newton force is a completely vertical. 200 Newton force is a completely vertical. So we can't consider 200 का कोई भी थिंग्स we can't consider in a summation of f of x, क्योंकि वो completely vertical है ना. हॉरिजॉन्टल में इसका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. इसका 200 का हॉरिजॉन्टल में कंट्रीब्यूशन 0 है, 100 का वर्टिकल में कंट्रीब्यूशन 0 है.
100 न्यूटन का वर्टिकल में कंट्रीब्यूशन 0 है, 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल में कंट्रीब्यूशन 0 है. So only two forces exist here. So you will get the answer. Now I will do similarly summation of f of y. Summation is nothing but this is a algebraic summation. Remember this. This is a algebraic summation. This is a algebraic summation. Summation of f of y. So first force I will consider 150. It is positive. It is 150 cos 20. 150 cos 20. Sorry, sin 20, not a cos. Because vertical component always we are considering it as a sine. 150 sin 20 and it is positive. And second force I have required to consider it is a 200 Newton and it is a negative. So minus a 200. So you are required to find out this answer. आप ये आपको सभी को करना है. Summation of f of x कर लीजिएगा, summation of f of y कर लीजिएगा. Now do the calculation. 39.5 sir. minus F of x. 40.995 येते सर. 13.95. 40.95. पहिलं summation of f of x ना. हाँ 40.95 येते. माइनस 40.95 न्यूटन. फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन रहता है. एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई minus 148. minus 148.6. minus 148.6. ओके. नाउ आई डिड समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मैंने फाइंड आउट कर लिया. मैंने समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी फाइंड आउट कर लिया. अभी आगे क्या, इसका मीनिंग क्या है देख लीजिएगा. ये सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मैंने कंट्रीब्यूशन किया. तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निगेटिव है. सो व्हाट आई हैव रिक्वायर्ड टू डू हियर, मेरे को वो ड्रॉ करने पड़ेंगे, मेरे को वो ड्रॉ करने पड़ेंगे. सो आई विल रिमूव दिस फॉर इनिशियल पीरियड. देख लीजिएगा मैंने क्या किया, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निगेटिव है. सो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ना, तो वो कंप्लीटली हॉरिजॉन्टली दिखाना पड़ेगा. So this is the summation of f of x. 40.95 लिखूंगा मैं, 40.95. Am I right? निगेटिव में नहीं लिखूंगा क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में आ गया अभी. अरे अंडरस्टैंडिंग और नॉट, ये निगेटिव जो है वो डायरेक्शन में आ गया, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा. एंड समेशन f of y is also negative. So this is also moving in a downward direction. मैं ट्रायंगल बना रहा हूं. पहले मैंने जैसे फोर्स के ट्रायंगल बनाए थे वो भी फोर्स में इधर बना रहा हूं. इट इज 148.6. इधर भी मैं निगेटिव नहीं दिखाऊंगा. सो दिस इज द समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज द समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई. आपने क्या किया था, वो पहले डायग्राम की तरफ जाइए. आपने पहले 200 न्यूटन फोर्स दिया था आपको, तो उसको आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में कंट्रीब्यूशन किया, वर्टिकल में उसका कंट्रीब्यूशन किया था. अभी आपके पास हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन है, वर्टिकल कंट्रीब्यूशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन, क्लोजिंग लाइन शुड बी वी हैव रिक्वायर्ड टू ड्रॉ. दिस इज अ क्लोजिंग लाइन और आई विल शो इट बाय डॉटेड लाइन. And this is a closing line and this closing line is called as a resultant. This closing line is called as a resultant. Are you understanding or not? This is a resultant. See here, same triangle, मैंने ट्रायंगल ही बनाया, ट्रायंगल के अलावा कुछ नहीं बनाया. 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन, वर्टिकल कंट्रीब्यूशन निकाला, सभी फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रीब्यूशन निकाले, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, सभी वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन किया, उसका मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. दो लाइन ड्रॉ करने के बाद मैंने एक रिजल्टेंट ड्रॉ किया और रिजल्टेंट ड्रॉ करते वक्त आप देख लीजिए, टू एरो शुड बी मीटिंग ईच अदर. दो एरो जो है दे शुड बी मीट टू ईच अदर. नाउ इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, व्हाट इज द प्रोसीजर? इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, सो व्हाट इज द यूज ऑफ Pythagoras. So r square is equal to summation of f of x square plus root of summation of f of y square. R square is equal to root of summation of f of x square plus summation of f of y square. So under root, if I wanted to find out the resultant, r is equal to root of summation of under root summation of f of x square plus summation of f of y square. Now find out this, put this value here, 40.95 square plus 148.6 square. You are going to get the resultant. Are you understanding or not?
अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं है. Only 1 minute left now. We'll stop here. So find out the result, and in next lecture I will ask to you. I'm going to ask this in the next lecture. Only 1 minute left now. So still ये खत्म होने के बाद आप बंद कर लीजिएगा, मीन्स ये लेक्चर बंद हो जाएगा. लेकिन आर फाइंड आउट किया, लेकिन सपोज दैट इफ आई वांटेड टू फाइंड आउट द थीटा, ये थीटा मेरे को फाइंड आउट करना है, ये एंगल विथ हॉरिजॉन्टल मेरे को फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द रूल? साइन कॉस टैन का पता है आपको. सो टैन थीटा इज इक्वल टू, राइट इट डाउन दिस, टैन थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समोच्ची बाजू, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स.